12 roll numbers are going to use this data sheet number 11. Second group should be using number 1. Second quarter of your class means roll number 13 to 24. हमारे सब ये इनके टेक्स्ट में अगर लिखते भी जाए ना तो ज्यादा अच्छा होगा मेरा ख्याल है। ये चले मैं कर आप इनको, हाँ जी, आप इनको लिख दे उसमें इनके ग्रुप में, मैं यहाँ से बोलता रहता हूँ। तो जो फर्स्ट शीट है दैट इज शीट नंबर 11. First 12 roll numbers should be using this sheet for calculations, observations and calculation purposes. Group sheet number 1 should be used by roll number 13 to 24, जो भी इनके बनते हैं, क्योंकि कुछ मिसिंग होते हैं, लोगों को बेहतर पता है हमसे। आप लोगों का स्टार्टिंग रोल नंबर क्या है? 59, 56, 56 से 60 be used by 69 to 80. Sheet number 16 for roll number 81 to 92. Sheet number 12 for the rest of the students of this class. So 56 to 68. Number 9 to 80. This is, I think, quite clear. Now, can you please see my screen? Is it visible to you? Please raise your hands, those who can see it. Please raise hands. ये हैंड्स नहीं उठाने वाले जनरली मेरा ख्याल है कि फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं होते और मेंटली भी प्रेजेंट नहीं होते। प्लीज डोंट डू दिस। Okay, that's good number. Please take down your hands. Now we will come back to our discussion that we were having previously. We have discussed comprehensively regarding consolidation in your lab as well as theory class. We have also discussed the performance of the test, which was comprehensively done by Sir Amar. Thanks to him, that he made a very good video and we showed it to you multiple times. The video is already sitting in your device, so I will request you to go through it again and again just to make yourself clear with this very, very important test. Now, switching to the final part of this test, which involves the calculations, that we discussed these things in nearly all weeks, and we were discussing the related activities
test, we need to have certain calculations done, which are very, very important. For that, I think the three class also. सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब ये तो बताते अच्छा, नहीं जब तक कोई 5-10 मिनट गुजरते नहीं है, तो आपको मैं अभी पहले से बता दूं। बिल्कुल सर ठीक है, मैं कट क्या दोबारा आ रही है? अब तक मैं यस जस्ट सर, नहीं आ रही सर। चले कोई बात नहीं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं की है, जस्ट प्रीव्यू एक आपको दे रहा था कि हम अब तक 2 वीक्स में इसकी रिलेटेड थ्योरी और परफॉर्मेंस इन द लैब क्लास डिस्कस कर चुके हैं, और हमने थ्योरी क्लास में तकरीबन सब कुछ डिस्कस कर लिया होगा आपने अब तक व्हेन वी आर स्पीकिंग। तो इट्स वेंसडे, नहीं भी किया तो फाइनली आपका मे बी कल या परसों जो लेक्चर होना है उसमें इट्स कंसोलिडेशन शुड बी डन। एम आई राइट? Okay, today we are set to discuss the calculation part, and it is not a very difficult thing. You have already been given data. That means you have seen the performance and now you have collected the data. It's time to come up with the plottings and to come up with the properties that we need to calculate from your data. See that some of the important things for us involves the height of the soil solids, the void ratio, and then the coefficient of consolidation, which is represented by CV. We have got various relationships that you have already discussed in the theory class. Then we have got the compression index, which is used for consolidation calculations. I'm talking about this particular one. Coefficient of compressibility, which is given by AV, and coefficient of permeability. There is another coefficient which is called coefficient of volume change, which is represented by MV. So we can calculate all these properties. Now the graph that we are interested in producing are the following three main types of graphs. The first one, as I highlight, and I'm also zooming it for you, is a dial reading versus the log of time. Another type of such graph is actually the dial reading versus the square root of time. So ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये तकरीबन एक ही चीज है। फर्क ये है कि आपने एक्स एक्सिस पर एक दफा टाइम रखना है और दूसरी दफा आपने अगर उसको दोबारा प्लॉट करना है तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ टाइम ले लेना है, which involves actually a method that we use to calculate the CV from this data. So ये तकरीबन एक ही ग्राफ तस्वुर किया जाता है, इसको डेफॉर्मेशन हिस्ट्री भी कहा जाता है. So dial reading versus the log of time, or deformation versus the square root of time. The third, or maybe the second type of graph, second type of major graph is actually very important, which is between the void ratio just to minimize confusion. I'm making some slight changes. Okay, now the third type is actually this, which is the void ratio versus the log of pressure, average pressure that you have increased on the pressure during the test. जो डाटा आपसे शेयर किया गया है, अगर आप इसको केयरफुली देखें तो एग्जैक्टली वही शीट है जो हमने आप पहले आपके हैंडआउट्स में प्रोवाइड की हुई है, ब्लैंक शीट. I will open that sheet first and then I will show you the data. This sheet is already with you now. As you can see, it reads observations and reading, that is actually the loading history. So this is actually the data sheet for consolidation test time displacement relationships. That's the entire sheet. If you can see that one column is dedicated to the time and the other column is dedicated to the pressure intensity. Now coming back to your data which is provided to you, you can see what is this. So this is your time over here, the first column, exactly the same thing. And you have got the load. So this is actually the 80-pound load values, but you can have it
for various load increments in the form of the load increment written here: 0, 1.25, 2.55, 10, 20, 40, and 80. You will later convert this into pounds. If it is given in the pounds, but you will convert this into kilograms. You will already have your area in square centimeter with you. That is somewhere you are given the diameter. So I can see it over here that the height of the ring is 0.75 and the ring diameter is 1.5 inches. इसको आप convert करें centimeters में, इस तरह height को convert करें centimeter में if it is required, and then you have got different weights in grams. ये आपको pounds में दिया गया है, तो बेहतर ये है कि आप इसको grams में convert कर लें, kilograms, and then later on you can calculate the loading and intensity. वरना अगर आप pounds per square inches करना चाहते हैं तो वो भी acceptable है, that doesn't really make a lot of difference, but make sure that during your calculations your units are consistent. क्योंकि अब तक आपको इंस्ट्रक्शंस में इस शीट में जो आपके साथ शेयर की गई थी वर्ड फाइल, उसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये रीडिंग्स जो है वो सेंटीमीटर्स और किलोग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स में दी गई हैं, बट ओवर देयर इन द डाटा प्रोवाइडेड टू यू it is given in pounds because our loading stones are actually in pounds, so we directly record data from pounds. That's actually a raw data, this one, the recently shared sheet with you. So this is sheet number 1. तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे पास क्योंकि डाटा पाउंड्स में वहां पर हमारे पास स्टोन्स है, तो हम डायरेक्टली पाउंड्स में लिखते हैं और फिर कैलकुलेशंस के वक्त हम इसको kilograms में convert कर लेते हैं. That can be easily done with a single click in your Excel sheet. I will show you an Excel sheet also. These are the dial gauge readings, all of them corresponding to different times. So जब आपने load maintain 0 रखा तो आपने एक dial gauge reading ले ली, आपने उसको initial dial gauge reading कह दिया. When you increase the load to 1.25 pounds, the dial gauge reading at 0 minute was 1000. Then it started reducing or changing, I would say. So it goes down and down and it becomes constant over here after some time. 927.5. Then you put second load increment, you moved on 879. Then you put the third load increment, which is 5. So you moved on, and at 8:30 when it became constant after 24 hours, you went for the next load increment. So when 20, you started noting down the dial gauge reading at different time lapses, and finally for 80 pounds you're going to note down the reading. और ये अगर आप सबसे नीचे देखें तो ये आपके पास अनलोडिंग की रीडिंग्स हैं. ये जब आपने अनलोड किया तो उनमें कितनी वेरिएशंस आई, ये क्या वैल्यू है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ चाहिए होती है, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. Now I'll come back to the Excel sheet that we generally obtain. अगर ये शीट आपको विजिबल है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको पहले दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ पर सैंपल नंबर लिखा हुआ, borehole 2, undisturbed soil, and it was taken from 1.5 meter depth. ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप इसलिए लिख देते हैं साथ, so that at later stages you should be able to use this information, whether you I mean when you're dealing with a lot of data points, it is likely that you're going to make certain mistakes and certain troubles mixing of the data. So you note it down, you put it over here. ये किसी का माइक ऑन हो गया, काइंडली इसको आप बंद कर दीजिए. ठीक है. Now after that you can see that we have got the recordings of the ring diameter, then we have got the recordings of the ring height. You calculate the volume in cubic centimeters. cc का मतलब यहाँ पर cubic centimeter. Weight of the ring, ring plus soil, and you determine the moisture content. If you recall in your notes also, I showed you this for moisture content determination, which is an important parameter for our testing. तो देखिए ये जो परफॉर्मा आपको यहाँ दिया गया, ये एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर कर लूंगा अब इस क्लास के बाद. You can just simply put your values here. जैसे आपके डायमीटर जो रेड आपके पास वैल्यूज नजर आ रही हैं, रेड कलर्स नजर आ रहे हैं, these are the values that you always obtain for a fresh test.
and then rest of the things will be calculated accordingly. Like if I place a cursor on the volume, you can see that in the calculation tab you have got a formula being implemented. So similarly, that's the value of the ring plus soil, and finally when you calculate the moisture content, you're going to use now. You can see that the final readings, the initial readings are mentioned here, and the final readings are mentioned here, just to uh, find any differences or find any other value. You can see that after consolidation, the dry density has been increased tremendously. Before the test, it was 17.2, and after the test, 20.3 kilonewton per cubic meter. Can someone tell me why is it so? Before the test, the sample is less compacted, and after the test, the sample is now more compacted. How is it? How that does that happen? सर वो बाद में उसका मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो गया और वो कम मॉइस्चर कंटेंट पे 100% सैचुरेटेड भी रह गया, वाइट्स कम हो गया, तो इस वजह से Yes, the answer is compression. After the consolidation test, it is the compression of the sample that has made it more dense. To be honest, तो moisture loss का एक factor हो गया. आपको पता सबको कि gamma D is equal to gamma B divided by 1 plus W. So if your denominator is decreasing, that simply means when your denominator is decreasing, it means that your value is increasing. Similarly, for the same volume of the sample before the test, as you can see that the volume was 21.719, the volume after the test is only 18.48. तो ये दो वैल्यूज ही काफी हैं आपको समझाने के लिए कि सेम मैस में अगर आपके पास वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इज डिफरेंट, एज आई हाईलाइटेड ओवर हियर, तो ये जो इनिशियल और फाइनल की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं ये आपके सामने ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको दैट एक्चुअली टेल्स यू द स्टोरी व्हाट हैपेंड विद द स्पेसिमेन बिफोर एंड आफ्टर द कंसोलिडेशन. Okay, now this is the data that is given to you. You have got the data of the load increments. अगर आपको याद हो हमने ये टेबल भी दिखाई थी जो कि समरी है इस टेबल की, लाइक यू सी ओवर हियर. इस टेबल को समराइज कर दिया जाता है यहाँ अनलोडिंग और लोडिंग के लिए over here. So applied pressure 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2 and so on, and then the unloading cycles. So ये जो टेबल है आपके पास ये यहाँ एक्सेल शीट में बना हुआ है और ये मैं एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर लूंगा. इनमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं कॉलम्स के अंदर. आपने अपने अपने डाटा को यहाँ पर यूज करना है और प्लॉटिंग आपने अपनी अपनी करनी है और प्लॉट सबके डिफरेंट लगने चाहिए. उसमें यू हैव टू प्ले विद द टाइप ऑफ द प्लॉट. उसकी आप फॉर्मेटिंग से प्ले करें, उसकी आप प्रेजेंटेशन से प्ले करें, उसकी कलर स्कीम से प्ले करें. यानी हर किसी का अपना यूनिक एक अंदाज होना चाहिए. आई कैन शो यू दैट two people who are plotting it with real effort, sitting down and plotting it with their effort, they will come up with a different type of presentation of their figures. तो ये आप लोगों ने नहीं करना कि डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेटिंग्स हैं एक्सेल के अंदर वो यूज करें, बल्कि आप कोशिश करें कि ये जैसे मसलन इसकी अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर इस वक्त है एरियल फॉन्ट के अंदर. तो आई ट्राई टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, आई चेंज द फॉन्ट like this. Maybe I don't like the color black, so I make it red. Italic is actually my favorite. So something like this that you can do. फिर किसी को ग्रिड लाइंस पसंद नहीं होती, यहाँ पर क्लिक करें, मेजर ग्रिड लाइंस पर जाएं. फर्ज कर लें आपको ग्रिड लाइन पसंद ही नहीं है तो आप नो लाइंस कर दें. ये देखिए क्या हो गया इस ग्राफ के साथ, ग्रिड लाइंस रिमूव हो गई. इसी तरह यहाँ जाएं, मेजर ग्रिड लाइंस को रिमूव कर दें. आपने फॉर्म उसकी माइनर ग्रिड लाइंस को भी रिमूव करना है तो माइनर को भी कर दें. So I like such type of graphs जिसमें ग्रिड लाइंस ना हो ताकि मैं क्लियरली पढ़ सकूं ग्राफ को. मैं अपने जाती तौर पर अगर मैंने कहीं करना हो तो. आपको ये टैग्स बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, आप टैग्स का स्टाइल और उनका साइज बढ़ा दें. ये देखें
तो इस तरह डिफरेंट ना लगाएं टैग्स, डजंट रियली मैटर। इसको खुद से आप थोड़ा बहुत लाइंस वगैरह इस पर ड्रॉ करें, कलर्स इसके चेंज करें। ये टाइटल यहाँ आपको नहीं चाहिए, इसको आप खत्म कर दें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का टाइटल है जी, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो आप ऐसे करके इसको खत्म कर दें। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें उसमें इंस्टेड। सो यू कैन डू मेनी थिंग्स, एंड आई वुड से दैट डू मेनी थिंग्स जस्ट टू मेक श्योर दैट कि आपका ग्राफ यूनिक लगे, डिफरेंट लगे। और ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं, आपने बहुत सारे ग्राफ्स बनाने, दैट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। So ये Excel sheet self-explanatory. I'm not going to put a lot of effort behind this. That you've got the load over area करके आप pressure intensity निकाल लेते हैं. Then you've got the dial gauge reading. मैंने बताया red color जो है, these are the readings that you read every time for a test, and rest of the calculations are done accordingly. लेकिन ये आपको पता होना बहुत important है, because in the quiz we will be asking these things, in the viva we will be asking these things, that what formula did you use to calculate the height of the specimen, to calculate the strain in the specimen, okay, to calculate cc, calculate mv, to calculate e. So all these formulas should be implemented and should be known to you for clarity. Okay, now this is the very important graph, that one of the graphs that I talked about earlier. ये जो आपको याद होगा कि मैंने बताया था 3 ग्राफ हैं, या practically speaking 2 टाइप्स के ग्राफ आपने बनाने हैं. I'm talking about this. तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आपकी एक्सेल शीट के ऊपर, ताकि आप देख सकें कि हमारी रिक्वायरमेंट में था या नहीं था. मैं इसको एज ए पिक्चर पेस्ट कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट को. I'm going to put it on top of everything. ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर मैं रखता हूँ ग्राफ्स को, और इसकी को फिलिंग शिलिंग भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दूर से नजर आ जाए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी. Okay, now I'm going to zoom it just for the sake of clarity. And what is our first requirement? As you can see, dial reading versus log of time, or dial reading versus square root of time. ये हमने ग्राफ बनाना था, हम इसकी बात बाद में करेंगे. हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी void ratio versus log of average pressure for the increment. So you can see that this is the graph that we were talking about. And we have got the void ratio on the y-axis, and we have got the pressure on the x-axis. What is this जिस पर मैं कर्सर फेर रहा हूँ? ये क्या चीज है? ये क्या है? टेबल में से लोडिंग ये कंप्रेशन, ये लोडिंग है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन साइकिल भी कहते हैं आप इसे. So ये इनिशियल कंप्रेशन साइकिल है, ये कंप्रेशन साइकिल है. और व्हाट इज दिस? अनलोडिंग अनलोडिंग कंप्रेशन था. हम अनलोडिंग साइकिल है, कंप्रेशन तो नहीं हो रहा, जाहिर अनलोड कर रहे हैं आप इसे. तो ये लोडिंग कंप्रेशन साइकिल है और ये अनलोडिंग साइकिल है. फिर अगर आप एक और अप्लाई करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक हिस्टैरिसीस बिल्ट होना शुरू हो जाता है. और जनरली इट इज रिकमेंडेड दैट you must ensure that your initial loading cycle and your second loading or third loading cycles, they nearly follow the similar trend. तो ये देखिए तकरीबन ये सिमिलर ट्रेंड है. उसकी वजह ये है कि सॉइल, खास तौर पर जो कोहेसिव सॉइल्स हैं स्पेशली, they are considered as I mean genius soils. They have memory, so they remember how they were behaving when they were first loaded, and then they were again loaded and they were reloaded again. So every time you unload, you will nearly find a similar trend of unloading. उसमें तकरीबन सेम ही आपके पास how to say response will be generated. And if you keep on loading it again and again in future, जैसे I mean in future means what, that if you're constructing something in the football stadium that has never had any building or any load before that, बच्चे सिर्फ फुटबॉल ही खेलते थे उसमें. So in that particular building, in that particular ground, if that building stays for 20 years and 20 years later you demolish that,
on court's order, and now you're going to construct a multi-story plaza on top of that. So first construction was a loading cycle, and you stopped at certain point. Then you demolish the building. It is the unloading cycle. Then you construct actually a multi-story building instead. So that is a huge loading cycle that crosses the previous loading point as well. But the soil will continue to behave exactly the similar fashion that it was behaving previously, as long as you remain in the elastic range of loading. तो उससे अगर आपके पास immediate settlements आनी होंगी वो आ जाएंगी, लेकिन consolidation settlement का जो behavior है that will remain the same. Now from this graph, as you can see, this graph is between E and P. यहाँ पर डेल्टा सिग्मा डैश बना हुआ, सिग्मा डैश और P एक ही बात है. You don't need to worry about that. Now you can calculate this important property of CC. I will highlight this for you. You can calculate CV. You can calculate AV, and you can calculate MV. Now all these properties can be calculated. If you start with the CC, CC is simply what? Can somebody tell me what is CC in this graph? जरा एक्सप्रेशन को भी देख लें CC के. इस ग्राफ में CC क्या चीज है? चलिए मैं इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए अंडरस्टैंड करने. Can you tell me in mathematical language that what is CC? Slope of the loading cycle. ठीक है जी. Slope of the loading cycle is called CC, and slope of the reloading cycle is called CR, recompression index. This is compression index, that will be called as recompression index, and that comes from the similar formula, but that is for the reloading cycle. Reloading cycle इसमें से कौन सा है? आप मुझे काइंडली सेगमेंट बताएं कौन सा है. क्या वो सेगमेंट DC है, क्या वो सेगमेंट AC है, क्या वो सेगमेंट DG है? रीलोडिंग सेगमेंट कौन सा है इसमें से? Can someone? Yes, DFG is actually your reloading segment, right? वैसे D है आपका रीलोडिंग, और FG जो है फिर वो अगेन लोडिंग साइकिल ही है आपका. Anyway, so CV, AV and MV have got a similar way of determining them. So अच्छा ये बताएं, ये कहाँ से निकलेगा? ये क्या चीज है? इसमें और CC में क्या फर्क है? AV में और CC में क्या फर्क है अगर आप अपेरेंटली फॉर्मूला को देखें तो? सर इसमें वो लॉग नहीं आएगा. सॉरी, किसी को आवाज का थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरा ख्याल है. The difference between AV and CV is simply the type of graph. You have plotted log of pressure, make it normal pressure, simply pressure. log हटा दें, इस pressure यहाँ पर plot कर दें, तो उसका जो उसकी जो वो slope है उस line का, that will be called as AV. From AV you can calculate MV, and from MV you can calculate CV. तो मैं यहाँ पर इसको जरा तरतीब जरा ठीक कर दूं इसकी, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो सके. Is that right? Does it make sense now? You've got a similar plot. ये देखें, ये वो AV को डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पर. How to calculate MV, AV. You can see over here. Also, you can calculate MV from this graph if you wish to.
सिंपली ए वी निकालें और उसके बाद उसको 1 प्लस ई नॉट से डिवाइड कर दें. We've got a very simple calculation. Actually, this we have already discussed in your theory class. I'll quickly go through this. In a consolidation test, the following results have been obtained when the load was changed from 50 kilopascal to 100 kilopascal. The void ratio changed from 0.7 to 0.65. Determine the coefficient of volume decrease MV and the compression index CC. So your initial void ratio is 0.7, your final void ratio is 0.65. The difference will be definitely the difference of the two, 0.7 minus 0.65. Similarly, your initial pressure and your final pressures are 1500 kilopascal respectively. Delta sigma. So we can calculate AV directly. Sign आपने ignore कर देना because sign is important. This is an absolute value. आपको पता है ना साइन का कोई ये जो स्लोप से कैलकुलेट किए जा रहे होता है साइंस की कोई हैसियत नहीं होती साइंस ओनली टेल यू द डायरेक्शन it's an absolute value that you have to report once you get a you can use this formula which is written over here to calculate the MV and if you get MV also you can use the log of the difference to get the value of the CC as well. So delta E over log of delta sigma. Delta sigma आपके पास 50 किलो पास्कल है, ये 50 है सिंपली. और आपको पता है कि इसमें जो डिफरेंस है लॉगरिथमिक में डिफरेंस कभी भी इस तरह नहीं लिया जाता कि लॉग ऑफ वैल्यू माइनस लॉग ऑफ वैल्यू को वैल्यू माइनस वैल्यू नहीं किया जाता बल्कि फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय द सेकंड वैल्यू के बराबर होता है. These are the metric equation things that you must remember. So this means that log of 100 divided by log of 50, this thing, the answer comes as log of 2 with the base 10 and we calculate the CC from this value. So that's how we make use of our experimental data. You can see that this example stems from the experimental results. So we calculate all these important parameters from them. Also you can calculate the degree of consolidation as well, which is simply the initial void ratio minus the void ratio at a given time. That time can be any 50% corresponding to 50%, corresponding to 60%, या जो भी आप time select करते हैं during the loading history, and divided by the initial void ratio and minus final void ratio. That simply tells you the how much the consolidation you have already achieved. Another important plot, we discussed it in the previous class as well, is actually this one. इसमें आप initial compression है आपके पास, then the second middle part is the primary consolidation, and the final part is the secondary consolidation. Initial compression when we are discussing consolidations. I'm concerned about the middle portion, which is the consolidation test or consolidation, the primary consolidation that we obtain. तो इसमें आपने different methods पढ़े हैं. ये methods भी मैं आपको थोड़ा सा review दिखा दूँ क्लास में, अपने theory class में, जिससे आप ये CV calculate करते हैं. And for that, yes, you've got square fitting method and log fitting method. So ये square, as the name suggests, these methods must be coming from the plots जिन पर आपने इन methods को लगाना है. और सर एहतशाम ने ये आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी किए हैं. मेरे पास वो स्लाइड्स भी हैं आपकी जिनमें आप लोगों को ये एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो आई बिलीव आप यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दी स्लाइड्स. अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर लेंगे इसको कवर सर एहतशाम के साथ इन द कमिंग कपल ऑफ डेज, आज या कल तक. मैं इस चीज़ को शामिल नहीं करना चाहता लैब क्लास में, अदरवाइज दिस विल बिकम क्वाइट एक्सटेंसिव फॉर यू. और बहुत सौ को जो है ना उसमें फिर ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का मसला होगा बल्कि ये फील होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा काम है लैब का, हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है. आपको हमने ये बना बनाया डॉक्यूमेंट दे दिया,
आपको टेबल्स बने बनाए दे दिए, आपको कैलकुलेशन के लिए एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। आप लोगों ने ये सब कुछ सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवाना है एंड आई वांट टू हैव योर ओन एक्सेल शीट, ये वाली नहीं जो मैंने भेज रहा हूँ, इसको आप गाइड के तौर पर यूज करें। मेक योर ओन एक्सेल शीट फ्रॉम दिस, इसे फॉलो करते हुए, इसको देखते हुए कि कैसे बनी हुई है। तो हर बंदा जब ये जॉब जमा करवाएगा ऑनलाइन, तो अपनी एक्सेल शीट्स भी आप लोगों ने देनी है जिसमें आपकी प्लॉटिंग हुई भी होनी चाहिए, योर ओन प्लॉटिंग। इज दैट राइट? Raise your hands, those who have understood. We need to have your Excel sheet of the consolidation test with all plots and calculations, your own made consolidation sheet, and this job done, its results, its tables, and everything. You can make use of this helping material in any ways. But please avoid copying each other. Please directly copy pasting this stuff that we have shared with you. Try to be more organized. ये काफी कम लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, which is not a good sign. You can see plenty of people are still holding back. अमार सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? Kindly take down your hands. I got the message. How many of you are literally interested into this? मेरा ख्याल है अमार सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें डिस्कशन में अब तक? नहीं सर आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर तो दिया। So that actually means it is good. So we will wait for now to your questions. If somebody got questions, please keep raising your hands and keep asking questions. किसी का हाथ खड़ा हुआ है अभी तक? I think ये हाफिज समर अवान साहब हैं। अभी सब क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। हाफिज समर अवान साहब, या फिर हाथ नीचे कर लें? अच्छा, बिलाल ने हाथ खड़ा किया, बिलाल कुछ पूछना चाहते हैं। बट नेक्स्ट वेडनेसडे को सबमिट करवानी है। सॉरी, दोबारा पूछें। सर ये लैब रिपोर्ट नेक्स्ट वेडनेसडे को सबमिट करवानी है। यार लैब रिपोर्ट जो ना आप को हम मैसेज कर देंगे, लेकिन ये कि मैं आई वुड सजेस्ट कि यार साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि फिर वो अचानक ना एंड में आपके ऊपर कार पड़ती है। मैक्सिमम ये कर सकते हैं हम आपके साथ, क्योंकि आप लोग अभी पता नहीं किस तरह के रिसोर्सेज के साथ हैं। एक तो आप लोगों ने हार्ड कॉपी किसी ने भी नहीं देनी किसी चीज की फिलहाल, जब तक वी आर आई मीन as long as we are having ODL classes. So you have to submit in soft, each and every one of you, all your manuals and everything done in a comprehensive document. एक ही डॉक्यूमेंट बनाए, सारी जॉब्स को वन ऑन वन उसके अंदर पेस्ट करें या स्कैन कर लें अगर पिछली आपने की हुई थी, चेक थी, या वट एवर द स्टेटस वाज। अगर आप उनसे मुतमईन नहीं है तो नहीं बना लें, डजंट रियली मैटर, लेकिन एक डॉक्यूमेंट बनाएं और उस डॉक्यूमेंट को आपने सबमिट करना, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये जॉब प्रेफरेबली अगले वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और आप इसको इवैल्यूएशन के लिए भेज भी सकते हैं। और आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपके जो हमारा परमिएबिलिटी हमने नेक्स्ट वीक से डिस्कस करना है, तो परमिएबिलिटी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 वीक्स में खत्म करें ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल सके। So as long as permeability will be up and running, you will not be submitting that. But once it is done, you have to submit each and every single experiment. तो ये जो आपका 6th वीक है इस सेशन का, ये आपका सबमिशन वीक होगा। इस वक्त करंटली 3rd वीक चल रहा है। Is that right? Next week and the week to follow, we will be discussing permeability. And the 6th week, we will be having your submissions, and submissions will be done online, soft forms, सब चीजें जो आपने सब जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं उनको आप स्कैन करना चाहते हैं जो प्रीवियस थे उनको स्कैन करें, वरना आपके पास सॉफ्ट में है तो उनको आप
सिंपली उनको इकट्ठा करें, 1 बाय 1 जॉब्स को टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं जॉब्स के नंबर्स के साथ। मसलन आपने 8 जॉब्स की हैं, 10 जॉब्स की हैं, तो सबकी टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह बनेगी कि एक आप कॉलम ऐड कर लें सीरियल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। सेकंड जो आपका कॉलम होगा उसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख दें जॉब की, टाइटल जो था जो हर जॉब का। और थर्ड जो कॉलम होगा उसमें सिंपली वो पेज नंबर लिख दें जो आपकी रिपोर्ट में उस जॉब को मिला हुआ। तो अगर एक जॉब स्टार्ट होती है पेज नंबर 3 से और खत्म होती है पेज नंबर 7 पर, तो पेज नंबर 8 से आपकी जॉब नंबर 2 स्टार्ट हो रही है, तो जस्ट वहां पर आपने ये पेज नंबर्स लिखने हैं कि 3 8, और फिर अगली जॉब अगर 16 पर स्टार्ट हो रही है तो 16 लिखें, सो ऑन। ये सिंपल एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं, टाइटल फ्लायर दें, उस पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, लेबोरेटरी जो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 लेबोरेटरी, फाइनल सबमिशन या फाइनल रिपोर्ट, सेकंड फ्लायर टेबल ऑफ कंटेंट, और थर्ड फ्लायर से सिंपली आपके एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ अटैच हो जाने चाहिए। दैट विल बी अ सिंपल रिपोर्ट। जो इस फॉर्मेटिंग में करेगा ही विल डेफिनेटली गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। जो रफ सबमिशन करवाएंगे उनको फिर हम उनके तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, यानी उनको उनकी प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंटेंट के मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। डज इट मेक सेंस? जी सर, और इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में 6 जॉब्स हो गई थी तो उनकी वैल्यूएशन भी हुई थी। तो आप कह रहे हैं कि हम पुरानी जॉब्स को भी दोबारा बना सकते हैं। अगर सर हम उनको बेटर बनाए तो जो पहले वैल्यूएशन हमारी हो चुकी है, ठीक है, फिर वो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? उसको हम सुपरसीड कर देंगे। अगर आपकी अब की जॉब जो आपकी फाइनल रिपोर्ट अगर अच्छी होगी ना, तो आपकी प्रीवियस जॉब्स के जो आपके मार्क्स थे जॉब्स के, यानी आपके काम किए हुए के मार्क्स, वो हम सुपरसीड कर देंगे। वो हम आपको इसके मार्क्स देंगे जो आप अच्छा बनाएंगे। इज इट गुड? ओके सर, थैंक यू। यस सर, गुड। ओके, नाउ एनीवन एल्स गॉट एनी क्वेश्चन? आई हैव गॉट कपल ऑफ हैंड्स रेज्ड। तो एक तो ये मिर्जा मोहम्मद साहब। हाँ जी, ये जो आपने आज एक्सपेरिमेंट में सर जी हमें ये पहले पहले मिर्जा साहब बोले क्या कहना चाहते हैं। सर जी हमें ये जॉब्स हैं जो पिछली हो गई हैं वो दोबारा से बनानी पड़ेगी? नहीं 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 यार, देखिए बनानी नहीं पड़ेंगी। जो जॉब सेक हो गई है ना आपकी, आपकी मर्जी है आपको ना बनाए, लेकिन उनको स्कैन जरूर करके ना और अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना के हमारे पास भेजें। बिकॉज समबॉडी हु हैज द अजम्पशन कि उसकी जॉब चेक हो गई थी, अगर हमारे पास उसका डाटा ना हुआ तो वो बेचारा बिला वजह नुकसान उठाएगा। ये नहीं देखे ना, मेरे पास अगर एक चीज का डाटा ही नहीं है, हमारे साहब के पास डाटा ही नहीं है आपकी वैल्यूएशन का, या मिस हो गया या मिसप्लेस हो गया है, तो आप कम से कम रिपोर्ट भेज के मसला ही हल हो जाता है वो। तो अगर आप उस पर और ऑन असल टॉप में ऑफ दैट, यस यस, हमने ना सर असल में कुछ मोस्टली एक दो जो मैंने सॉफ्ट में जमा करवाई थी, बाकी मैंने हार्ड में उसमें जमा करवाई थी मैनुअल पे सर, तो इसलिए कह रहा था मैनुअल अगर आप पर बना यूनिवर्सिटी नहीं सकते है। हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये इट्स अ राइट टाइम, क्योंकि इस वक्त आपका सेशन चल रहा है। एग्जाम के करीब यस आप सर। नहीं बना सकेंगे, फिर नहीं होगा। अदरवाइज बहुत हो जाए आपके साथ मसला हो, तो आप नहीं चाहते कि आपकी इंप्रूवमेंट हो, या आपके जो मार्क्स लगे हुए हैं आप उनसे हैप्पी हैं, जो भी हैं आपके मार्क्स आपको तो नहीं पता होंगे, खैर वो एनोनिमस होते हैं, तो आप उसको स्कैन कर दें जो आपकी हार्ड फॉर्म्स थी। सर वो ऐसा असल है कि अगर इन्होंने पिछले इवैल्यूएशंस में पार्ट ले लिया हुआ था तो वो तो उनके मार्क्स वहाँ पे मौजूद हैं ही हैं। तो हाँ फिर वो जी, बस आगे वाली जॉब्स की बात हो जाएगी जो इसकी है, ठीक है। अगर उसे ये स्कैन करना चलिए मुश्किल ये भी पड़ेगा। आपकी लाइफ आसान कर दी अमार साहब ने, कि आपके क्योंकि मार्क्स लग चुके हैं तो आप पिछली जॉब्स को ना लगाएं, लेकिन दोज हु विश टू इम्प्रूव, आई विल रिपीट, जिन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है, जो समझते हैं कि यार पहले नहीं सही काम हुआ था, ये हम चाहते हैं कि उसको बेहतर तरीके से मार्क्स मिल जाए, तो हमारे साहब क्या ख्याल है कि वो तो कर दें ना, वो तो लगा दें अपने साथ नया काम करके। ये लेकिन फिर साथ कम से कम कर दें कि जहाँ पे मैंने कोई कटौती की हुई है या कमेंट्स कोई लिखे हुए हैं कि ये चीज इंप्रूव हो सकती है, उसका भी साथ स्कैन मुझे भेज दें ताकि मैं कंपैरिजन भी कर सकूं दोनों चीजों में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिस इज वंडरफुल आइडिया। ठीक है जी, ये कर देंगे। ओके सर। ठीक है सर, इंशाल्लाह हाँ, सर। जो इम्प्रूवमेंट चाहते हो वो दोबारा जॉब बनाएं, अमार साहब के जो कमेंट्स लिखे होंगे उनको स्कैन करके वो पिक्चर साथ अटैच कर दें, उस जॉब के बिल्कुल फर्स्ट पेज के साथ ही लगा दें उसकी पिक्चर, एक पेज एडिशनल लगा लें जॉब से पहले, और वो पेज पर कमेंट्स हैं उनके। ठीक है, सर यानी कि जो प्रीवियसली चेक्ड है वो उनका स्कैन करके, और यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए अगर बनाना चाहे तो साथ दोनों चीजें अटैच करके सेंड नहीं करें। नहीं, दोनों ना अटैच करें, जो अमार साहब के कमेंट्स वाला पेज होगा ना उस जॉब के लिए,
उसकी वो पिक्चर यानी लें। कि जहाँ पे ये सर के साइन हुए चेक्ड के। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने वो आखिरी पेज पे किया हो। कभी तो जैसे ये है, अगर कोई टेबल पे मुझे कोई कॉलम गलत लगे तो मैंने वहीं उस पे कांटा लगा दिया था। तो ये है ठीक है, कि सातवां मैं लिख लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ कोई गलती है जिसका मैंने वो किया है, उसका बस आप वो कोई स्क्रीनशॉट या कोई इमेज लेके वो उसमें साथ अटैच कर दें, वो उस फाइल में जो आप एंड पे सबमिट करेंगे, ताकि मुझे पता हो कि मैंने, अब इतना अरसा हो गया, मुझे याद तो नहीं होगा कि मैंने क्या कहा था तब। बिल्कुल सही है, तो ये लॉजिकल बात है। मेरी भी चेकिंग में फिर वो जरा आसानी हो जाएगी इस चीज की, कि आप पहले बस ये हाईलाइट कर दो कि ये फलां इस जॉब में फलां मैंने मेरा कोई यूनिट्स का मसला था, या फलां मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन एरर किया था, या कुछ भी जो भी आपका हुआ हुआ है वो मैंने अगर हाईलाइट किया हुआ है वहां पे, आप उसका इमेज लगा दो अपने ये जॉब के इम्प्रूवमेंट से पहले, और फिर मैं आगे वो चीज चेक कर लूंगा, ताकि फिर मेरी वो एक टारगेटेड चेकिंग हो, ना कि मैं रैंडमली देख रहा हूँ कि ये अब इसने किया है या नहीं। ठीक है जी, डज इट ओके मेक सर, सेंस? ठीक हो। लेकिन सर अगर वो चले रिपोर्ट हासिल यस में सर। रह गई हो, जी जी। इस पे आपने वो लिखे हैं एरर आए हैं हमारी गलतियां, वो रिपोर्ट हासिल में हो। अगर ऐसा है कि हॉस्टल में हो तो फिर उसका नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। फिर ये कि आप कम से कम इतना जरूर लिख दें कि यानी अगर आपकी इम्प्रूव जॉब है ना, मसला एक जॉब आपने इम्प्रूव की है, आप कह रहे हैं कि यार मैं इसको रिवैल्यूएट करवाना चाहता हूँ, तो फिर ये कर दें कि उसके ऊपर ना उस जॉब के ऊपर जो है ना बोल्ड कुछ ऐसा लिख दें कि इम्प्रूव्ड, रेड कलर से ना, कैपिटल लेटर्स में, यानी उसके जॉब का जो फर्स्ट पेज होगा ना इनिशियल, यस तो सर। वहां पर आप लिख दें कि ठीक है जी मैंने ये इम्प्रूव की है। ओके सर। वो अगर हम हमारे साथ देख लेंगे, अगर वो आपकी जॉब अच्छी क्वालिटी की हुई, आपने उसमें सब कुछ तकरीबन कवर किया हुआ तो वो फिर अब दैट सिंपली सर मींस ऐसे सर्कमस्टांस में तो फिर ऐसा है कि जैसे अगर इनके पास अपने फिजिकली मैनुअल मौजूद नहीं है जिसमें मैंने कोई गलतियां इनकी हाईलाइट की हो, तो जी ये जी हो सकता है कि इनके अपने घरों में उन्हें वो गलतियां याद करना भी जरा इशू हो। मतलब अगर गलती सामने हाईलाइट ना की हो तो किस तरह इम्प्रूव करेंगे। अब इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो सर मेरा तो यही है कि उनका अप्रोच उनके कंटेंट पे होना चाहिए, ना कि उनकी प्रेजेंटेशन में इतना ज्यादा। ये बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंटेशन के तो पहले तो जो सामने चीज थी वो तो मैंने कर दिया जितने देने थे, लेकिन मैंने ज्यादा फिर वो कंटेंट के बेसिस पे गलतियां उनकी मार्क की हुई हैं। तो सही, ये बिल्कुल ना हो सही। कि इम्प्रूवमेंट में हो कि हर किसी ने मुझे इटैलिक कर दिया हो या फॉन्ट शॉर्ट उस चीज में, उसमें हाँ मैं जी, सिर्फ प्रेफर करूंगा कि कंटेंट जो उनका डाटा का है या जो उनके रिजल्ट्स का है, अ, वो उस चीज पे फोकस हुआ हो। और अगर वो चेंज कर रहे हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये कर लें कि अगर वो मेरे कमेंट्स नहीं अटैच कर सकते तो बस ये कर दें कि हाईलाइट कर दें कि यहाँ यहाँ मैंने अपनी चेंजेस किए हैं, तो मैं उस ये भी चीज को देख लूंगा। बिल्कुल सही। आप लोग सुन रहे हैं सब कुछ, अगर आप लोगों ने कुछ भी इम्प्रूव किया है तो उसको हाईलाइट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? ये थोड़ा सा सर डिफिकल्ट है। जी जी। गॉट इट और सर। किसी का कोई क्वेश्चन? एक और भी हाथ खड़ा हो रहा था आई थिंक। जी हमजा। वो फिर अनफॉर्चुनेटली जो आपकी इवैल्यूएशंस हो चुकी हैं, फिर वो मेरा ख्याल है अब हम उसको मजीद अगर इस तरह से आप कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट तो फिर नहीं हो सकती। सर वो कंप्लीट करना था ना, तो ये इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए, तो फिर वो डाटा सारा उधर ही है। इसका ये मसला होगा ना जिस वक्त आप लोग सबमिशंस कर रहे होंगे, जब जिसका ये मसला होगा वो इंडिविजुअली कांटेक्ट कर ले। आई थिंक उसके लिए कोई पॉलिसी फिलहाल तो नहीं दी जा सकती। आप लोग अभी तो जो काम कर रहे हैं वो तो करें ना कम से कम, हम फिर वो देखेंगे आई उसमें थिंक मेजॉरिटी, तो उसके बाद छुट्टियां होगी सारे बच्चे वापस आ, तो यही शायद। चलें। अभी तो फिलहाल ये कि जो जो बातें हुई उन पर तो स्टिक करें ना, उनको तो करें कम से कम कंप्लीट, और अपनी ये जॉब्स। ये सबसे मसला है। जी आई कैन अंडरस्टैंड दिस शुड बी एक्चुअली अ ग्लोबल प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी जो जो लोग कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो अभी फिलहाल दोज थिंग्स शुड बी डन व्हिच आर सपोज्ड टू बी डन।
ये जो इश्यूज हैं कि आपका डाटा वहां रह गया, ये आपकी, हमारे पास कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन का रिकॉर्ड तो है ना यार। और दूसरा ये कि अभी भी आपकी इवैल्यूएशन होनी है फाइनल, तो वी विल सी हाउ वी कैन एक्चुअली मेक इट जस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, फिलहाल इस पे कोई पॉलिसी अभी नहीं बनाई जा सकती, यानी हर चीज का आंसर इस वक्त नहीं दिया जा सकता, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और किसी का कोई कंसर्न या क्वेश्चन हो या अंडरस्टैंडिंग की तरफ से कोई इशू हो? ठीक है, इज दैट ऑल? चलें जी, फिर अगर इफ एवरीवन इज हैप्पी सो वी विल क्लोज आवर क्लास फॉर टुडे। किसी का कोई क्वेश्चन हो इन द मीन टाइम ही कैन आस्क नाउ, इफ ही हैज एनी कंफ्यूजन्स लेटर ऑन he can ask me myself or Saramar, we both will be available for you। जी बिलाल, क्या कह रहे हैं आप? जी सर वो आपने बोला था कि आप ऑनलाइन क्विज या वाइवा वगैरह का हमें शेड्यूल बताएंगे, तो सर काइंडली थोड़ा सा ना उसके बारे में हमें गाइड या प्रैक्टिस करवा दें, ताकि सर हम वाइवा मैं या बिल्कुल क्विज देने करवाऊँ। से पहले थोड़ा सा यूज हो जाए। जी जी बिलाल, इस वक्त इशू ये है कि अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी ना फिलहाल तो आई नहीं है, नहीं हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस भी कोई नहीं है फिलहाल ऐसी। मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ नहीं अभी तक कोई आई हम उसके बारे में कोई यानी खुद को एनर्जी को जाया करें। As long as it happens, inshallah we will first do some exercises, just we will try to make ourselves comfortable with that, and then we will do, it won't be a surprising package for you, यानी आपको पहले से ऐसा नहीं होगा कि आपको अचानक एक दिन सरप्राइज मिलेगा कि आ जाओ भाई बैठो कोई से। सो फील रिलैक्स, ओनली फोकस ऑन द कंटेंट दैट वी आर करंटली डिस्कसिंग। ठीक है, अभी फिलहाल ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्लियर नहीं है, पता नहीं, हो सकता है कि ऐसा हो कि आप लोगों को विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स 4 वीक्स जो है ना सुनने को मिलेगी यूनिवर्सिटी खुल गई है अचानक, तो देन एवरीथिंग विल बी एक्चुअली मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। अभी हम जस्ट इन द थर्ड वीक ऑफ दिस सेमेस्टर है, एंड टर्म सेमेस्टर के, तो आई थिंक वी स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और जैसे ही मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं या मुझे जैसे कोई मैसेज मिलता है तो हम फिर उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। एनीवन एल्स? अच्छा सर, मैं ये भी क्लास के साथ कंफर्म करना चाह रहा हूँ, अभी आप लोगों को जो डेंसिटी वाला और फील्ड डेंसिटी और ये प्रॉक्टर टेस्ट वाले जो से थे जॉब्स, इनके आपके मैनुअल तैयार पड़े हैं? सर वो एंड वाली जॉब्स का ना असल में कुछ लोगों ने डाटा नहीं था लिया, क्योंकि आपने बोला था कि मिड्स के बाद सबमिट होंगे, तो हमने ये सोचा कि चलो हम मतलब नेक्स्ट वीक में रीडिंग्स या जो भी है डाटा ले लेंगे, तो वो उसके बाद फिर छुट्टियां होगी, तो आई थिंक डाटा ही नहीं था लिया गया। एंड वाली जॉब्स का परफॉर्मेंस हो गई थी, लेकिन शायद डाटा रह गया था कुछ। चलें फिर ऐसा कर लें सर, इन्हें कह दें कि ये आने वाले वेडनेसडे तक बेशक अगर इनका कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं होता है, पिछली 2 के तो मैनुअल बना के वो सबमिट कर दें जो जॉब्स आप की प्लीज हैं, काइंडली डू दिस, ये इतना तो कम से कम आप लोगों को करना चाहिए कि क्योंकि पिछली दो वरना तो इन पे तो कंप्लीट। ये एकदम 4 जॉब्स का करना वो तो बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा 6th वीक में। देखिए आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड द वीक टू फॉलो वी हैव गॉट अराउंड 2.5 वीक फ्रॉम नाउ। जब तक हम परमिबिलिटी कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को परमिबिलिटी कंप्लीट करते ही उससे अगले वीक में यू हैव टू सबमिट दीज 2 जॉब्स एज वेल। सो आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट वीक जब आप आए तो आप लोग कंसोलिडेशन को कर चुके हो या ना कर चुके हो, दोनों जॉब जरूर कंप्लीट कर लें, प्रीवियस 2 जो जॉब्स हैं आपकी। दैट्स द राइट टाइम। इस वक्त आपके ऊपर कम से कम लोड है ना, कोई क्विज़ेस हैं इस वक्त आपके सर पे और क्लासेस चल रही हैं, आपकी रेगुलर नॉर्मल रूटीन है, सो प्लीज फिनिश इट नाउ। एक गलती आप अभी कर रहे हैं, आप लोगों ने डाटा लेने में सुस्ती की थी, छुट्टियां हुई हैं और उसके बाद ये पैंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद हो गया। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज बिकमिंग एन एक्सक्यूज फॉर यू, which I don't think so should be
शुड बी लाइक कंसिडर्ड इवन, क्योंकि वो गलती ऐसी है कि उसमें आप लोगों की तरफ से हुआ है मिस्टेक। हमने तो आपको नहीं कहा था कि आप डाटा ना लें, बट इट्स ओके, इफ इट इज डन इट इज डन। जी राकिब, आप क्या कह रहे हैं? Can you hear me, Rakib? I can't hear you. उजैर, आप क्या कह रहे हैं? सर उसमें अभी जो सर हमारा बात कर रहे थे कि लास्ट वाली जो 2 जॉब हैं सर, उसकी आई थिंक के मॉइस्चर कंटेंट की रीडिंग शायद हमने नहीं थी ली, तो वो फिर जो रीडिंग हमारे पास नहीं है उसे फिर स्किप कर दें फिलहाल। मॉइस्चर कंटेंट की रीडिंग नहीं दी आपने? ये सर फिर इन्होंने फील्ड डेंसिटी की नहीं ली होंगी, वरना प्रॉक्टर टेस्ट की तो इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने लेनी थी। वो तो ये पैंडेमिक वाली छुट्टियों से 2 हफ्ते पहले का इन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। मैं यही इनसे कह रहा हूँ कि नहीं सर, जो एंड पे किया था सिर्फ उसकी आई थिंक रहती है, बाकी तो सारी होंगी मेरे ख्याल। चलें, बेशक फील्ड डेंसिटी वाली मॉइस्चर की नहीं है, उसकी आप एक रीजनेबल अजम्पशन कर लें, लेकिन मॉडिफाइड प्रॉक्टर और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर उसका तो आपके पास मॉइस्चर की होनी चाहिए वैल्यू। आपने ये सॉल्यूशन टेस्ट का डाटा सेंड की है, इसी तरह इसी से लेके वो वाला डाटा सेंड कर दें ताकि हम वो कंप्लीट कर लें सारा। नहीं, जो आपके फील्ड डेंसिटी वाले टेस्ट थे उनका तो सर मैं कह रहा हूँ जिस सॉल्यूशन टेस्ट हमने परफॉर्म नहीं किया, मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, सामने आपने हमें डाटा दे दिया है, इसी तरह हमें वो फील्ड डेंसिटी वाला टेस्ट का भी डाटा दे देते हैं। देखें हमारा सब अगर हो तो कोई चले, मैं कल डिपार्टमेंट जाऊंगा तो मैं वो देख लेता हूँ अगर उनके पास पड़े हैं कोई टेस्ट के डाटा। चलिए, वैसे ये जो ना प्रैक्टिस ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि आप लोग वक्त पर कर लें। जैसे अभी हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि आपसे एक चीज जो मिस हो गई है उसको उससे सबक लें, और वी आर कंपनसेटिंग यू फॉर नाउ, बट नाउ वी विल नॉट डू दिस इन फ्यूचर। या एक सर बात है, अगर इन्हें मॉइस्चर कंटेंट का ही डाटा चाहिए तो ये कर दें कि जितने भी ग्रुप्स हैं मुझे मैसेज कर दें कि किस डेट पे इनकी परफॉर्मेंस हुई थी और उनके कैन नंबर क्या है, मैं वो फिर लैब रिकॉर्ड से देख लूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। अगर आप लोगों को ये याद है तो काइंडली सर हमारे से कांटेक्ट कर लें विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, एवरीवन इज हैप्पी। गॉट एनी मोर क्वेश्चंस? अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो आई वुड से गुड बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ये सर किसी ने हैंड रेज किया अभी। ओके जी, उबैबा। सर लैब टेस्ट मैंने से तक जमा करवानी है। सॉरी उबैब, दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं आप? लैब रिपोर्ट नेक्स्ट वेडनेसडे तक जमा करवानी है। जो 2 जॉब्स आपकी मिड से पहले हुई थी उनकी लैब रिपोर्ट नेक्स्ट वीक जमा करवाएं। ये करवानी सॉफ्ट फॉर्म में है, सो देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज। बनाएं, पीडीएफ में कन्वर्ट करें एंड सेंड थ्रू टू योर सीआर, नॉट टू अस डायरेक्टली। सीआर मेक श्योर दैट हर रिपोर्ट जो हमें भेजी जाए ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से सेव हो। एक जिप बनाए फोल्डर, तो पूरा फोल्डर क्लास का जो है शेयर कर दें। साइज ज्यादा हो तो ड्रॉप बॉक्स का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉप बॉक्स का बना सकते हैं आप अपना अकाउंट,
वैसे जीमेल से अगर आप ईमेल करें तो 50-60 MB बड़े आसानी से आप 50-60 MB की फाइल भेज सकते हैं, डायरेक्टली भी भेज सकते हैं और इनडायरेक्टली भी भेज सकते हैं, वो गूगल ड्राइव के जरिए। ठीक है उजैर? ओके सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है जी, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अलोंग, और इंशाल्लाह विल मीट अगेन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।